We are speaking from the platform of Ranawari Cassette. And what is the date today? 24th of August 2021. Okay now. All of you are very smart and very responsive and very cooperative. Let me ask you some questions. Number one question. Where from did we get chilies? Raise hands, raise hands. Mexico gave us chili. Who gave us? 1493. In In 1493. In 1493 we got the chili. Very good. Naturally in 1492 Vasco da Gama went to America. So he brought along with him all the things that were there in America, and chilies were in Mexico. So he brought chilies from the Mexico itself. Achha. And now, can you tell me where from did we get maize? Mexico. Again, you know that Mexicans were taking maize as a staple food. They were taking maize, and we were introduced to maize only through travelers from America. Achha, now let me ask you, who gave us rice? Where was rice first of all found? Rice was first of all found in China. Rice was first of all found in China. Wheat was found first of all in Middle East. Wheat was found in Middle East. And do you know rubber was found in Brazil? I'm talking of originally where they were found. Brazil, rubber was found in Brazil. Wheat was found in Middle East. Rice was found in China. Achha, then tobacco was already in use in South America when Europeans reached there, and then tomatoes were there in Central America and South America. Pumpkins were in North America and Central America. Pumpkins. अच्छा Mexico हुआ ना वही Central America. अच्छा और मतलब अच्छा introduction of potatoes was very important to us because as potatoes were introduced, people in Europe started eating to their fill. Otherwise, they would generally remain poor. People will remain hungry. But the production of potato was very large, and as a result of it, potatoes became the staple food of the Western people in those countries. At one point, what happened was, what happened was that Ireland, there was famine of potatoes in Ireland. Ireland में वहाँ पर क्या हुआ कि that potato crop fail हो गया, and the people there suffered from this famine right from 1845 to 1848. 3 साल तक ये famine था, और आयरलैंड की पॉपुलेशन 1/3 हो गई. या तो कुछ लोग भाग गए, either some people ran away or some people died, and the population that way reduced to 1/3. So important was potato in the European food in. Achha, now this was super things that come from outside to us. Now can you tell me who is the present president of China? Xi Jinping. Achha, who was the first person who liberalized the economy? Deng Xiaoping was the person who revolutionized communist China. He said that communistic economic model is not the correct model. The capitalistic model is the only correct model. So he allowed free trade in China and free business in China, because of which China today is exporting goods to all the countries in the world and has dominated the world with her goods. Achha, can you tell me what was the first message given on gramophone by Edison? Mary had a little lamb whose fleece was as white as snow. What is the logo of gramophone? Dog in front of the speaker. In front of the loudspeaker. Achha, now can you tell me who was Chiang Kai-shek?
President of China. Chiang Kai-shek was the president of the Republic of China during which war? Was it during Second War or during First War? Second World War. He was president during First World War. Are you sure? जरा देखो. From 1949 to 1959. but he started Communist Party of China in 1921. 1921, yes, sir. 1921. Acha, when was Nazi Party started? 1921. Yes, sir. Nazi Party also started in By 1921. Hitler in By Hitler 1921. And Communist Party of China also started in 1921. 1921. And do you know in 1921 what happened? In 1921, in Turkey, Mustafa Kemal took over the throne of Turkey. And in 1922, he made a friendship treaty with Russia. Achha, when did Turkey become free? In 1921, Turkey and Russia entered into the friendship treaty. And वही तो मैं कहता हूँ 1921 ही. In 1922. अच्छा, फिर स्लिप ऑफ टंग हो गई होगी. 1921 में फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई और टर्की का फ्री रिपब्लिक 1922. अच्छा, अब बताओ when was the Khalifa title of Turkey abolished? When Mustafa Kemal assumed the throne, he wanted to become only the king of Turkey. He did not want to remain the Khalifa. Huh? 1924. 1924, the Khalifa post was abolished. Yes, 3 March, 3rd March 2024. So that means 1924, Turkey also, the king of Turkey was the Khalifa. But when Mustafa Kemal became the king of Turkey, he abolished this post in 1924. अच्छा, now अब आप लोग कम बोलेंगे, मुझे बोले दे. बताओ जी, जापान ने चाइना पर कब हमला किया? 1931 में जो हमला हुआ उसमें जापान ने चाइना को बुरी तरह से हराया. और जब बुरी तरह से हराया, फिर जापान ने चाइना से क्या मांगा? तामुनी जंग, इंडिमिनिटी ऑफ वॉर. वो अमाउंट बहुत हैवी था जो जापान दे नहीं पाया, चाइना दे नहीं पाया. तो उसको देने के लिए रशिया, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ये सब सामने आए. मगर उसके अवध में उन्होंने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मांगा इन चाइना. और अमेरिका ने कहा मुझे भी दे दो थोड़ा सा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. इस तरह से चाइना का एक हिस्सा जो है डिफरेंट कंट्रीज ने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मांगा. तो इसको कहते हैं चाइनीज मेलन. चाइना एक मेलन की तरह बटा है. देखा, इसीलिए आजकल चाइना बड़ा खतरनाक हो गया है और किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, जो उनको पिछली एक्सपीरियंस बहुत बुरी है. अच्छा, चाइना को स्लीपिंग जायंट क्यों कहते थे? चाइना को स्लीपिंग जायंट कहते थे. उसको स्लीपिंग जायंट क्यों कहते थे? उसको स्लीपिंग जायंट इसलिए कहते थे क्योंकि अंग्रेज लोग वहां पर काफी नशा बेचते थे और वो नशे में उनको धुत करते थे, तो सोते ही रहते थे, इसलिए इसको स्लीपिंग जायंट कहते थे. और स्लीपिंग जायंट इसलिए भी कहते थे कि चूंकि चाइना कमजोर था, ये अपने आप को ये अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट नहीं कर पाता था, तो कहते थे ये स्लीपिंग जायंट है. लेकिन जब ये जाग जाएगा तो पूरी तरह से जाग जाएगा. तो वही इसका हाल है. अच्छा, चाइना की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर है बताओ? 9 ट्रिलियन डॉलर से हमने आपको बताया था. हाँ जी, चाइना की इकोनॉमी 9 ट्रिलियन डॉलर. अमेरिका की इकोनॉमी एट प्रेजेंट 13 ट्रिलियन डॉलर. इज 9 ट्रिलियन डॉलर. 9 ट्रिलियन. हाँ, और अमेरिका की इकोनॉमी है 13 ट्रिलियन डॉलर. इंडिया की इकोनॉमी है 2.9 ट्रिलियन डॉलर.
$13 trillion dollars. हाँ, और चाइना की $9 ट्रिलियन, वो लिखा सर इंडिया इंडिया $2.9 ट्रिलियन, India 2.9. 9 ट्रिलियन। इंडिया कितना पीछे है, चाइना के पीछे बहुत है। इससे पहले जापान है, जापान की भी मतलब चाइना के बाद मेरा ख्याल है जापान है। अच्छा, ब्राजील है टू, 2.9. ब्राजील है टू, ब्राजील की है $2 ट्रिलियन, Brazil? $2 ट्रिलियन। आपको पता है क्या होता है कि किसी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है 2.9. उनकी इकोनॉमी डॉलरों से मेजर की जाती है, और कितने ट्रिलियन का, और इकोनॉमी का मेजरमेंट डॉलरों से किया जाता है। ब्राजील 2 trillion. तो इस वक्त सेकंड इकोनॉमिकली सेकंड इम्पोर्टेंट कंट्री जो है वो चाइना है। चाइना. अच्छा, आप मुझे बताओ, चाय किसने हमें दी सबसे पहले? ना, चाय भी तकरीबन टी भी चाइना ने दी है, सिल्क भी चाइना ने दिया है। सिल्क चाइना ने बहुत सी चीजें दी है, टी दी है, सिल्क दी है, प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग दी है। पेपर करेंसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय चाइना, पेपर करेंसी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय चाइना। और जब चाइनीज लोगों ने पेपर करेंसी एक्सेप्ट नहीं की तो उनको पनिश किया गया। जब पनिश किया तो फिर नेचुरली उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू की। सो चाइना वाज मेरे ख्याल सबसे पहले था जिसने कि पेपर करेंसी का इंट्रोडक्शन किया। इट वाज नॉट अ स्मॉल आइडिया, इट वाज अ बिग आइडिया। अच्छा, अगर चाइना कंपास हमें नहीं देता तो नेविगेटर्स प्रोबेबली वर्ल्ड को नेविगेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो जिस वक्त समंदर में होते थे तो वो कंपास के जरिए ही दे वुड बी एबल टू नो डायरेक्शन थ्रू कंपास। उनको पता, अदरवाइज समंदर में कुछ पता नहीं चलता है ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ, साउथ। समंदर में जो हमारे नेविगेटर्स थे उन्होंने सारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया बिकॉज ऑफ कंपास। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना का कंट्रीब्यूशन कितना है इन एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। अच्छा, आप मुझे बताएंगे एक्यूपंक्चर किसने दिया हमें? एक्यूपंक्चर वो भी चाइना ने दिया। उनकी ट्रेडिशनल मेथड्स में एक्यूपंक्चर एक इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। अच्छा, आप मुझे बताएंगे अमेरिका को अमेरिका क्यों कहते हैं? discovered by Amerigo. अच्छा, अमेरिगो वाज द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड इन अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका उसी की डिस्कवरी है। तो मगर ये अमेरिगो कहाँ का था? Italian. इटालिया। Navigator. अमेरिका जो था, अमेरिगो था इटाली। जो इसका क्या नाम है, कोलंबस जो था ना, वो पहुंच गया था कहाँ? वो बहामास पहुंचा। वो मेनलैंड अमेरिका नहीं पहुंचा था, वो इंग्लैंड रीजन बहामास। तो फिर वापस आया, थिंकिंग दैट ही इज डिस्कवरिंग इंडिया, थिंकिंग दैट ही इज डिस्कवरिंग रूट टू इंडिया। अच्छा, ये कोलंबस किस कंट्री का था? ना, कोलंबस स्पेन का था। इसने कोलंबस किस कंट्री का था वो देखो, मगर कोलंबस से स्पेन के बादशाह से वहाँ क्वीन थी इस्बिला, उससे पैसे लिए थे इस प्रोजेक्ट के लिए। खुद पता नहीं, खुद स्पेन का नहीं था। तो कोलंबस वाज born in Italy, he died in Spain. So he had taken help from the Queen of Spain, Isabella. First, She was a Spanish queen who gave help to Columbus to make this adventure. And he took the prisoners of war. No, he took prisoners as his assistants on the ship. जो शिप में लेबर था ना, जिनको शिप में उसने काम के लिए लगाया, वो थे प्रिजनर्स। अच्छा, और सुनो, ये वास्को डी गामा कहाँ का था? वास्को डी गामा इटली का था।
वास्को डी गामा वाज इटालियन, और उसने इटालियन बादशाह से फाइनेंशियल हेल्प लिया। He was Portuguese. कौन था? वास्को डी गामा वाज पोर्तुगीज। He was born in Portugal. अच्छा, एंड हु फाइनेंस्ड हिम? आई थिंक द किंग ऑफ, या इसको दिस वास्को डी गामा वाज पोर्तुगीज, तभी तो ये पुर्तगीज कॉलोनी थी, एंड ही गॉट हेल्प फ्रॉम पोर्तुगीज किंग टू ट्रैवल टू इंडिया। अच्छा, केप ऑफ गुड होप को केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं? Cape of गुड होप, केप ऑफ गुड होप कहाँ है? केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में है, अफ्रीका के टिप पर है गुड होप। southern edge of Africa. इसको केप ऑफ गुड होप क्यों कहते हैं? इसको केप ऑफ गुड होप इसलिए कहते हैं क्योंकि जब वास्को डी गामा वहां पहुंचा तो उसको लगा कि अब उम्मीद अच्छी है हिंदुस्तान का रास्ता, हिंदुस्तान पहुंचने के लिए, तो इसलिए इसको का नाम पड़ गया केप ऑफ गुड होप। और जिस वक्त वो अफ्रीका के एंड पर पहुंचे तो अब तो पूरा श्योर है आई एम रीच इंडिया, तो इसलिए उसने इस पोस्ट का नाम ही बाद में लिखा केप ऑफ गुड होप। अच्छा, साउथ अफ्रीका पहले किसकी कॉलोनी थी? रशियन। नहीं, डच कॉलोनी थी। साउथ अफ्रीका वाज फर्स्ट डच कॉलोनी, और साउथ अफ्रीका बाद में अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई किया, उन्होंने डच को शिकस्त दी और अंग्रेजों ने ऑक्यूपाई किया। अच्छा, आप बताएंगे मुझे डीपेस्ट मैन मेड पिट कहाँ है? वेयर इज द डीपेस्ट मैन मेड पिट? Russia. डीपेस्ट मैन मेड पिट इज साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में वो डायमंड्स को ढूंढ रहे हैं, डायमंड को ढूंढते ढूंढते वो खोदते गए, तो पिट जो है वो डीपर बढ़ता गया। मैन मेड, डीपेस्ट मैन मेड पिट वो साउथ अफ्रीका में है। अब आपको समझ आएगा वो क्यों डीप हो गया, क्योंकि वो डायमंड क्यों। अच्छा, हमारे साउथ अफ्रीका में डायमंड क्यों मिलते हैं? तो बताओ, साउथ अफ्रीका में डायमंड क्यों मिलते हैं? अच्छा, लॉन्गेस्ट पहले बताओ, साउथ अफ्रीका में डायमंड क्यों मिलते हैं? इट इज द लैंड ऑफ डायमंड्स, तो वहां डायमंड क्यों मिलते हैं? बोलो क्योंकि देखो, सबसे पहला आपको याद होना चाहिए, सबसे पहला दरख्त जो है, प्लांट जो है, वो साउथ अफ्रीका में आया। सबसे पहला आदमी जो है वो इथोपिया में पाया गया। सबसे पहला आदमी जिसने टूल इस्तेमाल किया वो भी अफ्रीका का था, और सबसे पहले जो लोग निकले वो अफ्रीका से निकले और माइग्रेट होकर डिफरेंट जगहों पर गए। देखा ये डार्क कॉन्टिनेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि पहले प्लांट्स जो है वो साउथ अफ्रीका में पाए गए, और ये प्लांट्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जमीन में बिरी हो गए, जमीन के प्रेशर और हीट के वजह से ये कोल में कन्वर्ट हुए, कोल फर्दर प्रेशर और हीट से डायमंड में कन्वर्ट हो गए। दैट इज वाई, क्योंकि वहाँ के जंगल जो है वो ओल्डेस्ट जंगल्स है, इसीलिए वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डायमंड में कन्वर्ट हो गए, और फिर लोगों ने डायमंड निकालना शुरू किया और डिग करते गए। अच्छा, अगर लोग सबसे पहले अफ्रीका से माइग्रेट गए तो आगे यूरोपियन कंट्रीज में ये कहते हैं कौन सा रास्ता था जहां से वो आए? सवाल ये, वो यूरोप में आए होंगे, इस्तांबुल सुवेज से वो आ गए होंगे यूरोप में, तो यूरोप से फिर अमेरिका कैसे पहुंचेंगे? आपको पता है, आपको एक है बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग स्ट्रेट एशिया को, अगर वहां पर ब्रिज बनाया जाए, इट विल कनेक्ट एशिया विथ रशिया विथ अमेरिका, करेगा ना? देखो बेरिंग स्ट्रेट कनेक्ट करेगा ना? बेरिंग स्ट्रेट नहीं कनेक्ट करेगा, मगर अगर बेरिंग स्ट्रेट के ऊपर ब्रिज लगाया जाए तो जाएगा वहां पर अमेरिका की तरफ। जरा देखो नक्शे में, नक्शा देखो, बेरिंग स्ट्रेट, हाँ यहाँ पर तो है नहीं, आइस का ब्रिज बन गया, और जो अफ्रीका के लोग थे वो इस ब्रिज के जरिए जो अमेरिका की तरफ आए। और वहाँ ये तो काले लोग हैं, मैंने आपको कहा कि 4 नस्लें हैं, एक तो कोकेशियंस है, तो बताओ कौन सी 4 नस्लें हैं? वो 4 नस्लें कौन सी?
एक तो नेग्रोइड्स हैं जो ब्लैक हैं, दूसरा वाइट हैं जो कॉकेशियंस हैं, और तीसरा येलो है जो 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 उनको क्या कहते हैं, येलो रेस को, जो ना ये चाइना में है, उनका क्या, जैसे उनको नेग्रोइड है तो कॉकेशियन, उनका भी एक अलग नहीं, वो येलो। अच्छा, फिर एक और रेस है जिसको हम कहते हैं सेमेटिक्स, जो अरब के हैं, इसराइल के हैं, पैलेस्टीन के हैं, वो अलग रेस है, उनको सेमेटिक्स कहते हैं। एक हो गया नेग्रोइड, दूसरा हो गया कॉकेशियंस, तीसरा हो गया येलो, चौथा हो गया सेमेटिक्स। अच्छा, अब ये रेसेस कैसे बनी, वो तो हम तो ये, अगर सारे लोग अगर अफ्रीका से ही माइग्रेट होकर चले गए तो वो डिफरेंट एरियाज में सेटल हुए, जहाँ जहाँ वो सेटल हुए वहाँ पर ज्योग्राफिकल कंडीशन से उनकी शक्लें भी बदली, है ना। White है Caucasian, Asians है, Mongoloids, हाँ, Mongoloids, येलो पीपलों को कहते हैं Mongoloids। black है, negroids and हिब्रू हो गया ना, वो जिनको मैं जिनको सेमेटिक्स में कहते हैं। हाँ, हिब्रू जो कि इसराइल और पैलेस्टीन के लोग हैं उनको हिब्रू कहते हैं, और इनके साथ ज्वाइन करो अरब भी, तो इन सबों को कहते हैं सेमेटिक्स, दे आर कॉल्ड सेमेटिक्स। ये तुम्हें आया, आसंतर आया तुम्हें तो? अच्छा, इनका इंटरेक्शन हो गया आपस में, तो Caucasians, people who lived on the banks of Caspian Sea. Caspian Sea and on Caucasus Mountains. Caucasians. Negroids, because रेस का नाम ही है निग्रोज, नेग्रोइड्स कहते हैं। मंगोलाइड्स हो गया वो सारे जो एशिया में जितने भी लोग कहते हैं नेग्रोइड्स है। और I think we had a good session of interaction, and we came to know about many things, and we will continue this dialogue. God bless you. Thank you.